بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے 2 اسباق مکمل ہو چکے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے الدرس الثالث التاء، ٹھیک ہے، تا سے شروع ہوتا ہے۔ چنانچہ اب اس کو پڑھیں گے اور اس پر ہم جو ہے نا پریکٹس بھی کریں گے تھوڑی سی۔ جی، تفاح، تفاح کہتے ہیں سیب کو، تفاح سیب۔ تین، تین انجیر، انجیر کو کیا کہتے ہیں؟ تین۔ اور شاتوت کو کیا کہتے ہیں؟ توتن، شاتوت کو کیا کہتے ہیں؟ توتن۔ تفاح تین توتن، ٹھیک ہے، ہذا تفاح ہذا تین ہذا توتن۔ جلدی جلدی 5 مرتبہ یہ دہرا لیں، جلدی کریں۔ چلیں آگے دیکھیں، ٹھیک ہے، ہذا توتن ہذا تین ہذا تفاح پڑھ لیے۔ آگے دیکھیں، پہلے فعل دیکھ لیں، یہاں پر فعل الون، الون، لبن یلبن، ٹھیک ہے، جیسے ارتب ہے نا، ایسے الون، الون مانا میں رنگ کر رہا ہوں یا ڈیزائن دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کلر کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، انا الون۔ سلہ کہتے ہیں چھابی کو، ٹوکری کو، سلہ ٹوکری کو۔ فاکہہ کہتے ہیں پھلوں کی ٹوکری کو، فاکہہ کہتے ہیں پھلوں کی ٹوکری کو۔ تو کیا ہوا؟ انا میں، الون میں رنگ بھر رہا ہوں پھل کی ٹوکری کو۔ سلہ، سلہ، سلۃ الفاکہہ، ٹھیک ہے، سلۃ فاکہۃ، نعم۔ جس طرح ابھی شیماء نے اوکے کا نشان دیا ہے، اس طرح دوسرا بھی میسج کیا کریں کہ ہمیں سمجھ میں آئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو انا الون سلۃ الفاکہہ، انا الون سلۃ الفاکہہ۔ تو لون یلون مانا کلر کرنا، سلہ مانا سلہ ٹوکری، سلہ کہتے ہیں کوئی بھی ٹوکری، اس کو سلہ کہتے ہیں۔ کوئی بھی چھابی ہو، جیسے روٹی کی چھابی ہوتی ہے، ہم اس کو چھابی کہتے ہیں، وہ سلہ ہے، وہ بھی ٹوکری ہے۔ پھلوں کی ٹوکری ہو، اس پر بھی سلہ کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن ساتھ میں پھل کا نام لگ جاتا ہے، جیسے سلۃ فاکہۃ، سلۃ فاکہۃ، ٹھیک ہے۔ تو انا الون سلۃ الفاکہہ، ٹھیک، یہ جملہ بن گیا۔ ہم کوئی اور جملہ بھی بنا سکتے ہیں، فاکہہ کی جگہ ہم کیا لگا دیں؟ روٹی کو لگا دیں، خبز، خبز، سلۃ الخبز، چھابی، روٹی والی چھابی۔ انا الون سلۃ الخبز، سلۃ الخبز، روٹی کی جو چھابی ہے میں اس کو کلر کر رہا ہوں۔ انا الون، انا الون الکتاب، انا الون الکتاب، نعم، انا الون کتاب، میں کتاب کو کلر کر رہا ہوں۔ انا الون الثیاب، انا الون الثیاب، میں کپڑوں کو کلر کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، رنگ کر رہا ہوں۔ تو بات سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ آگے دیکھیں، فی السلۃ، فی السلہ، فی کا میں نے معنی پیچھے آپ کو بتایا ہے، آپ کو یاد ہوگا، فی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں، فی مطلب میں۔ فی السلۃ، اس میں سلہ ٹوکری کو کہتے ہیں، فی السلہ ٹوکری میں، تفاح، تفاح، تفاح کیسے کہتے ہیں؟ سیب کو، پیچھے پڑ گیا ہے، وتین انجیر کو، وتوتن اور شہتوت کو، ٹھیک ہے۔ ٹوکری میں سیب ہے، انجیر ہے اور شہتوت ہے، ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی؟ فی السلۃ تفاح وتین وتوتن، سبق کی طرف توجہ دیں شیما، سبق کی طرف توجہ دے زیادہ۔ فی السلۃ تفاح وتین وتوتن، بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کچھ اور بھی کہتے ہیں، فی السلۃ، فی السلۃ کوئی اور نام لے لیں، کوئی ہم نے پڑھا ہو کھانے پینے میں، اور کیا کیا نام ہو سکتا ہے؟ فی السلۃ عنب، فی السلۃ عنب، ٹوکری میں انگور ہے۔ فی السلۃ موز، موز بھی نظر آ رہا ہے، یہاں پر موز بھی نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، کیلا بھی ہے، فی السلۃ موز۔ تو الغرض جملہ بنانے کا طریقہ بتا دیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ٹوکری میں کیا ہے؟
मा फी हादिहि सल्ला, हादिहि सल्ला, मा फी हादिहि सल्ला, इस टोकरी में क्या है? आप कहोगे फी सल्लती तुफाहुन व तीनुन व तूतुन। आगे देखिए, अना उरत्तिबुल अलवानी, अना उरत्तिबु अलवानी, मैं अब अलवान कहते हैं रंग, तो मैं कलर्स को तरतीब दे रहा हूं। अना उरत्तिबु अलवानी। बात समझ में आई है? सब अगर मैसेज करें जिनको बात समझ में आ गई है, जल्दी से मुझे मैसेज में बताएं। ठीक है, अना उरत्तिबु अलवानी, मैं अपने रंगों को कलर कर रहा हूं। अलवानी, मैं अपने रंगों को तरतीब से रख रहा हूं, मैं अपने रंगों को तरतीब से रख रहा हूं। तो बात समझ में आ गई? दोबारा सुने, अना, अना मतलब मैं है, उलव्विनु, मैं रंग कर रहा हूं, मैं जो है ना कलर कर रहा हूं, सल्लता फाकिहतिन, इसको फाकिहा किसे कहते हैं? फल, फलों की टोकरी को, फल की टोकरी को मैं कलर कर रहा हूँ। फिसल्लती, और टोकरी में क्या क्या है? तुफाहुम व तीनुन व तूतुन, उसमें क्या है? सेब भी है, इंजीर भी है और तूत भी है। अना उरत्तिबु अलवानी, अना उरत्तिबु अलवानी, मैं अपने कलर्स को मैं तरतीब से रख रहा हूं, मैं अपने कलर को तरतीब दे रहा हूं। यहाँ पर एक और चीज सीख ले, यहाँ पर फेल कितने आगे? इस सबक में दो फेल है, उलव्विन और उरत्तिब आपने पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पर एक और फेल को सीखने की जरूरत है जो फलों के मुनासिब है, वो क्या है? खाना। खाने को क्या कहते हैं? अना आकुल, अना आकुलु तुफाह, मैं सेब खा रहा हूँ। अना आकुलु तीनुन, मैं इंजीर खा रहा हूँ। अना आकुलु तूतुन, मैं शहतूत खा रहा हूँ। तो आकुलु का मतलब मैं खा रहा हूं, आकुल। ठीक है, तो जुमला बनाना है आपने मुख्तलिफ अफ़आल के साथ, और मुख्तलिफ मुफरदात उसमें इस्तेमाल करने हैं। तो इंशाल्लाह भी हम मश्क करेंगे, तदरीब में इसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? देखें, तदरीबात, तदरीब भी देख ले साथ, तदरीब भी साथ देख लें। तिमसाहुन, 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 तिमसाह किसे कहते हैं? कौन बताएगा? वॉइस अपना मैसेज में बता दे, तिमसाह किसे कहते हैं? तिमसाह, तिमसाह कहते हैं मगरमच्छ को। तिमसाह कैसे कहते हैं? मगरमच्छ को। औरत्तिबु, औरत्तिबु, औरत्तिबु फेल है, तूतुन अभी पढ़कर आए हो, और इसी तरह फाकिहा। ठीक है, अब जुमलों की तलाश करनी है। ठीक है, तुफाहुन के साथ कौन सा जुमला आएगा? फिस्सल्लति तुफाहुन, देखें तुफाहुन के साथ फिस्सल्लति तुफाहुन व तीनुन व तूतुन, तुफा के साथ ये क्रॉस में आ गया। ठीक है, उरत्तिबु किसके साथ आएगा? अना उरत्तिबु अलवानी, सल्ला किसके साथ आएगा? अना उलव्विनु सल्लता फाकिहतिन। अब मैंने भी आपके साथ मुफरत बोलूंगा तो आपने पूरा जुमला बनाकर बताया करना है मुझे। ठीक है, तिमसाहुन, ये देखिए तिमसाह नीचे बना हुआ। ठीक है, वो किसे कहते हैं? मगरमच्छ। तो मगरमच्छ के मुनासिब कौन सा फेल लेकर आएंगे? आप कहेंगे अकला, अकला तिमसाहु, अकला तिमसाहु तुफाहुन, अकला तिमसाहु तुफाहुन, मगरमच्छ ने सेब खाया। पता नहीं, शायद आपके इलाके में मगरमच्छ सेब खाते होंगे, हमारे यहाँ तो नहीं खाते। ठीक है, तो अकला तिमसाह तुफाह, तो इस तरह के जुमले बनाएंगे तो अरबी हमें बहुत जल्द आ जाएगी। आगे देखें, ये रंग भरना है आपने। असद भी पढ़कर आ गए हैं आपने, आप असद भी पढ़ा है और तिमसाह भी पढ़ लिया आपने, और साथ में जबल उन भी पढ़ लिया है। तो इसको आपने कलर भी करके आना इन मशकों को। ठीक है, तो आज का सबक हमारा तीसरा सबक था, तीसरी अद्दर्स सालिस था। तो हमने उसमें क्या पढ़ा है? अद्दर्स सालिस में हमने
सबसे पहले मुफरदात पढ़े हैं। तुफ़ाहुन सेब को कहते हैं, हादा तुफ़ाहुन ये सेब है, हादा तीनुन ये इंजीर है, हादा तूतुन ये शहतूत है। और इसमें इनके मुनासिब जो फेल हम लगाएंगे, मतलब मैं सेब खा रहा हूँ, कैसे कहेंगे? अना आकुलु तुफ़ाह, मैं सेब खा रहा हूँ। अना आकुलु तीनुन मैं इंजीर खा रहा हूँ। अना आकुलु तूतुन, मैं शहतूत खा रहा हूँ। अना आकुलु खुब्जुन, खुब्जुन खुब्ज किस कहते हैं? रोटी को। हम कसरत से घर में खाना तो खाते हैं ना, तो रोटी तो सब खाते हैं। तो जब रोटी खानी है तो आपने क्या कहना है? अना आकुलु खुब्ज, अना आकुलु खुब्ज या उम्मी, अना आकुलु खुब्ज। और खुब्ज की जगह हम ताम भी कह सकते हैं। ताम, ताम किसे कहते हैं? खाने को। अना आकुलु ताम, हाना वक्तु ताम। ठीक है, रोटी का वक्त हो चुका है। हाना मतलब हो चुका है वक्त। हाना वक्तुल उतला, छुट्टी का वक्त हो चुका है। तो इस फेल को भी नोट कर लें, तो इस फेल को भी नोट कर लें, इस फेल को भी नोट कर लें। तो दोबारा जो अभी बाद में आए हैं उनके लिए दोबारा मैं एक बार दोहरा रहा हूँ सबक को। देखिए, तुफ़ाहुन मतलब सेब, तीनुन इंजीर, तूतुन शहतूत। अब इनसे जुमले बनाने हैं, जुमले। देखिए, हमने हमारे पास कितने फेल हैं? हमारे पास 3 फेल हैं। उरत्तिब पहले पढ़ चुके हैं हम। उलव्विन, उलव्विन कहते हैं कलर करना, ठीक है। और तीसरा फेल हमारे पास है ना, आकुल, ठीक है, आकुल। अना आकुल, मैं खा रहा हूं। तो पहले आकुल को हम इस्तेमाल करते हैं, अना आकुल तुफाह, ठीक है। अना आकुल तीन, अना आकुल तूतुन। दूसरा उलव्विनु, उलव्विनु को इस्तेमाल करें, अना उलव्विनु सल्लतल फाकिहा। अना उलव, सल्ला कहते हैं सल्ला, सल्लातुन कहते हैं टोकरी को, छाबी को। कोई भी छाबी हो उसको सल्लतुन कहेंगे। सल्लतुस सौब, ठीक है, सल्लतुस सौब। और इसी तरह सल्लतुल फाकिहा, सल्लतुल खुब्ज। कोई भी टोकरी हो, रोटी की टोकरी हो, छाबी हो, उसको भी सल्लतुल खुब्ज कहेंगे। फलों की हो, सल्लतुल फाकिहा कहेंगे। कपड़ों की टोकरी घरों में होती है, जिसमें कपड़े जो है ना धोने के बाद या धोने से पहले उसमें जमा किए जाते हैं, तो उसको कहते हैं सल्लतुस सौब और सल्लतुस सियाब, सल्लतुस सियाब। तो मैं टोकरी को रंग कर रहा हूं, अना उलव्विनु सल्ला, मैं टोकरी को रंग कर रहा हूं। अब वो टोकरी कौन सी होगी? फल की है, रोटी की है, कपड़ों की है, तो उसके साथ वो लगा देंगे। अना उलव्विनु सल्लता फाकिहा, फलों की टोकरी को रंग कर रहा हूं। अना उलव्विनु सल्लतल खुब्ज, रोटी की टोकरी को कलर कर रहा हूं। अना उलव्विनु सल्लत सियाब, कपड़ों वाली टोकरी को कलर कर रहा हूं। कोई भी टोकरी लगा दे या कोई और चीज लगा दे। अना उलव्विनु कस, मैं गिलास को कलर कर रहा हूं, ठीक है। अना उलव्विनु, अना उलव्विनुल बाब, मैं दरवाजे को कलर कर रहा हूं। तो इसी तरह जुमले बनाते रहे। जितने भी मुफरदात पढ़ लिए हैं, सबके पास मुफरदात का अलग पेज हो, सबके पास अफ़ाल का अलग पेज हो, सबके पास हुरूफ का अलग पेज हो, उनके मानी लिखे हों, अफ़ाल का अलग पेज हो, जुमल का अलग पेज हो। ये 4 पेज सबके पास होने चाहिए। रजिस्टर बनाएं, उसमें जितने भी अफ़ाल पढ़ लिए हैं सबको एक जगह पर लिखें, जितने भी हुरूफ पढ़ लिए हैं उसको एक जगह पर लिखें, जितने भी मुफरदात पढ़ लिए उनको अलग लिखते रहे, जमा करते रहे। जब आप जुमले बनाने लगेंगे तो जुमला मुफरद को देखकर जुमले बनाते रहेंगे, तब जाके अरबी कुछ कुछ न कुछ आनी शुरू होगी। वरना अरबी सिर्फ आकर क्लास में बैठ जाने से और सबक सुन लेने से अरबी कभी नहीं आएगी। आप 10 साल सुनते रहे, आपको नहीं आएगी। जब तक आप अपनी जुबान को, अपने कलम को हरकत नहीं देंगे, अरबी नहीं बोल पाएंगे। और जब तक ये जो कुछ पढ़ रहे हैं घर में इसको नहीं बोलेंगे, बार बार इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आज नहीं तो ये कल भूल जाएगा आपको। समझ में आ गई? अगला जुमला हमने कहा फिस्सल्लति तुफ़ाहुन व तीनुन व तूतुन। अच्छा, अब टोकरी का हमने बता, टोकरी को रंग किया और टोकरी में क्या कुछ है हम ये बता रहे हैं। फिस्सल्लति तुफ़ाहुन व तीनुन व तूतुन। एक तो ये आपके पास सांचा मिल गया जुमले का। इस जुमले से आप कई जुमले बना सकते हैं। मसलन मैं कहता हूँ घर में अब्बू है, अम्मी है और भाई है। फिल बैती
अबुन व उम्मुन व अखुन, ठीक है। फिर सल्लाजा, थल्लाजा कहते हैं फरिज को, फिर सल्लाजा, सल्लाजा आगे आ रहा है इंशाल्लाह पढ़ेंगे हम, सल्लाजा, सल्लाजा कहते हैं फरिज को। फिर सल्लाजती मरकुन, सालन है, फरिज में सालन है। फिर सल्लाजती तुफाहुन, फरिज में सेब है। फिर सल्लाजती तीनुन, ठीक है। तो ये बताने के लिए घर में क्या है, कमरे में क्या है, फ्रिज में क्या है, तो ये जुमला हम इस्तेमाल कर सकते हैं फी के साथ। फी सल्लाजा, फिल बैत, फिल गुरफा, ठीक है। उम्मी फिल गुरफा, ठीक है। उम्मी फिल गुरफा, मेरी वालदा कमरे में है। उम्मी फिल बैत, मेरी वालदा घर में है। तो इस तरह के जुमले जब आप एक जुमले से कई जुमले बनाने लग जाएंगे तो अरबी आसान हो जाएगी। आगे, अना उरत्तिबु अलवानी, अना उरत्तिबु अलवानी, मैं रंगों को तरतीब से रख रहा हूँ, तरतीब दे रहा हूँ, ठीक है। अना उरत्तिबु सियाब, मैं कपड़ों को तरतीब से रख रहा हूँ। अना उरत्तिबु, अना उरत्तिबुल कुतुब, मैं किताबों को तरतीब से रख रहा हूँ, ठीक है। ये सांचे हैं, इस पे हमने और प्रैक्टिस करनी है। अब आगे आगे आपने, जुमले तो ये देने हैं मैंने, लेकिन इन जैसे जुमले मैंने और बनवाने हैं आपसे, ठीक है। आगे मैंने बताया, तिमसाहुन किसे कहते हैं, मगरमच्छ को कहते हैं, ये नीचे बना हुआ भी है, ठीक है। और आगे हमने पढ़ा हुआ है, मश्क आपने खुद देख लेनी है इसे, ठीक है। तो अगला सबक हम फिर पढ़ेंगे। जी, जज़ाकल्लाहु खैर व अहसन जज़ा।